عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. ایسی ہونی چاہیے. آدمی یوں کہہ رہے کہ میں نے محنت کی اور جماعت نہیں بنی، میں نے محنت کی اور 3 دن کی جماعت نہیں بنی. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ پاک کی طرف سے طے ہے کہ محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع. ارے بولو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہمارے یہ پورا مجمع ہر سال کی طرح ماشاءاللہ یہ کارگزاری کا عمل ہوتا ہے. پہلے تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آخر تک بیٹھو گے انشاءاللہ. اچھا ان میں سے کون جانے کی نیت کر کے آیا ہے کہ میں بیچ میں چلا جاؤں گا؟ کوئی بھی نہیں. میں تو کل سے کہتا ہی ہوں نا کہ مہسانہ کے لوگ کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں. کیسے ہیں مولانا؟ بہت اچھے. خالی بہت نہیں، تھوڑا مد کے ساتھ. کیسے ہیں؟ آخر تک بیٹھو گے انشاءاللہ. چلو اللہ قبول فرمائے. ایک آدمی کو بھیجو. آپ کے یہاں مسجد وار جماعت اور 2.5 گھنٹے کا نظام کیسے ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ بتلاؤ، جو معلوم ہے وہ نہیں. چونکہ آپ کا تو ہر آدمی بیان کرنے والا ہے اور 5 عملوں کا حافظ ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پھر فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا بہت بھیڑ ہو گئی. اگر کہاں بیٹھے ہیں تب ابھی تک نہ سکتے فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے. 18-20 ساتھی بیٹھتے ہیں مشورہ میں. ملاقاتوں کی 4 جوڑیاں بنی ہوئی ہیں. 4 جوڑیوں کے نمبر وائز کارگزاری لیتے ہیں. آپ کی جہاں فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں مصلی کتنے ہوتے ہیں؟ مصلی 25 ایک ساتھی ہوتے ہیں. اچھا اس میں سے 20 بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ. چاروں جماعتوں کی کارگزاری لیتے ہیں. یہ 20 کب سے بیٹھتے ہیں؟ کافی ٹائم سے بیٹھتے 20 کا 21واں نہیں ہو رہا ہے؟ ہیں. نہیں، کبھی محنت ہوئی؟ ملاقاتوں میں ترغیب دیتے ہیں. ماشاءاللہ. چلو پھر کارگزاری لینے کے بعد ترغیب دیتے ہیں. جو بھی تقاضے رہتے ہیں اس اعتبار سے محنت کرنے کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں. اچھا کل مکانات کتنے ہیں؟ مکانات ہمارے یہاں 57 مکان 57. آپ کی مسجد کے اطراف میں؟ مسجد کے اندر. اور 4 مہینے والے وہ چلے کتنے ہیں؟ چلے لگائے ہوئے 4 مہینے والے 13 ساتھی ہیں اور چلے والے 22 ساتھی. کل 35 ساتھی. ماشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ کارگزاری کا عمل ہوتا ہے. پھر محنت تو پھر مغرب بعد ہوتی ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت. مغرب بعد ملاقاتوں کی ترتیب میں 4 جوڑیاں ملاقاتوں کی بنی ہوئی ہیں. چاروں جوڑیوں فکر کے ساتھ ملاقاتیں کرتی 15-15 گھر تقسیم کرتے ہیں. روزانہ گھر وائز ملاقات کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر ہاں کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ 50% قابو میں ہے. گھر میں بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں. یعنی قابو میں نہیں ہونے کی کیا وجہ؟ 50%. کچھ گھر ایسے ہی جو اندر نہیں بلاتے ہیں جس کی وجہ سے. یعنی چھوٹے مکانات ہیں؟ ہاں چھوٹے مکان. یعنی اتنے چھوٹے کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو جو اندر بلاتے ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں. جو نہیں بلاتے آپ ان کو سمجھاتے، کوشش کرتے ہیں انفرادی میں باہر کہ میں دیکھو گھر گھر کا ایک نظام چل رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ پھر باہر بیٹھ کے ہی ملاقات کرتے ہیں. اچھا یعنی آپ نے بھی طے کر لیا کہ جو بلاوے اس کے گھر جانے کا، جو نہیں بلاوے تو اس کو زبردستی نہیں کرنے کی، باہر بیٹھ کر بات کر دینے کی، ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ٹھیک ہے. چلو اور فہرست بنی ہے گھر گھر کی؟ ہاں فہرست بنی ہوئی ہے. مکان تقسیم کر رکھے چاروں جوڑیوں کو اور چاروں جوڑیوں کے پاس بالغ مردوں کی فہرست بھی ہے. اچھا
कितने दिन में तमाम घर मुकम्मल हो जाते हैं? 57 घर है ना? हाँ, 1 महीना लग जाता। आपकी 4 जोड़ियां है हाँ, और एक जोड़ी रोज कितनी मुलाकात करेगी? एक करके। एक घर की। तो 4 रोजाना मुलाकात तो हुई ना, हाँ, यानी 2.5 घंटे पूरे एक ही घर में लगा देते, तो आधा घंटा लगता है एक घर में, बाकी 2 घंटे। बाकी 2 घंटे नहीं लगता। अच्छा, आधा घंटे को 2.5 घंटे लगाते हैं। आधा कौन होता है? फिर बाद में आकर मस्जिद में अच्छा, अगर चलो यही ले लो, एक घर, एक जमात, एक घर की मुलाकात, तो 4 जमात, 4 घर, 10 दिन में कितनी हो जावे? और 15 दिन में? और इनके पास तो 57 मकान है, तो 15 दिन में तो हो जानी चाहिए हाजी साहब। गस्तों के दिन मुलाकात नहीं होती, कौन कोसे के दिन गस्तों के दिन, तो मगरिब के बाद मुलाकातों का निजाम है, इसलिए हफ्ते में 4 ही दिन मुलाकात होती है। अच्छा, आपके वहाँ गश के दिन खाना भी नहीं खाते? खाना तो खाते हैं लेकिन ये भी तो रूहानी गिज़ा थी। गश गश भी मगरिब की बात होता है। चलो, तो महीने में मुलाकात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, सब घरों में। अच्छा, घर के तमाम बालिग अफराद की मुलाकात हो जाती है? 57 घरों में बालिग मर्द कितने हैं, उसकी फहरिस्त निकालिए। 105 बालक हैं। 105। 105 के 5 सबकी मुलाकात हो गई 15 महीने में। कुछ साथी रह जाते हैं जो मगरिब के बाद नहीं मिलते हैं, वो रह जाते हैं, बाकी अक्सर हो जाती है। नहीं, जो मगरिब के बाद नहीं मिलते, तो हमारे तो हर साल आप लोगों के सामने ये बात आती है ना, कि सामने वाला जो वक्त पर मिले, हम उसी वक्त में उसकी मुलाकात करें। तो आप ऐसा नहीं करते? फर्ज फर्ज के दर्जे में कि मगरिब के बाद ही मुलाकात होगी, न ईशा के बाद होगी, न दिन भर में होगी, है भाई? ऐसा तय करके रखा है। अब उसको थोड़ा तब्दील कर लो। ये कोई वही नहीं उतरी है। मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ना, ये तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद ही मुलाकात होवे, इसका कोई वही का ताल्लुक नहीं है, तो मशवरे की बात है। चलो, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। और क्या क्या करते हैं 2.5 घंटे की मुलाकात में? मुलाकातों के अलावा अगर कोई बीमार रहता है तो वहाँ उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपके यहाँ किसी का इंतकाल नहीं होता सब होता है, तो जाते हैं तीमारदारी में। तो बोलो ना, इसमें क्या है? तीमारदारी नहीं, ताजियत। ताजियत में जाते हैं। माशाल्लाह। और वो जमात में अगर गया हो, हाँ हाँ हाँ, मुलाकात करवाने की होती है, करते हैं, करते हैं। माशाल्लाह। और चलो, माशाल्लाह, बैठ जाओ। देखो भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अल्लाह पाक और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 1 महीने में तो घर घर की मुलाकात का निजाम भी हो जाता है, और 25 मुसल्ली है, तो मस्जिद व जमात में कितने बैठते हैं? 20 बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये 25 नहीं, जो मुसल्ली है वही मस्जिद व जमात के साथी नहीं, बल्कि हमारी मस्जिद व जमात के साथी इनकी मस्जिद के एतबार से कितने हैं? नहीं, 105। मस्जिद व जमात के साथी कितने हुए? अरे बोलो नहीं यार। इनके लिए, इनकी मस्जिद की मैं बात करता हूँ, इसको पकड़ मत लेना। जितने महल्ले में बालिग मर्द है, वो सब के सब हमारी मस्जिद व जमात के साथी हैं। हमारी पहली मेहनत तो होगी मुसल्ली पर। इनके यहाँ 20 मस्जिद व जमात में बैठते हैं और 25 नमाजी है। हमारी पहली मेहनत किन पर लगेगी? इन 5 पर।
इन 5 को जमा करने के बाद फिर पूरे महल्ले के जितने बालिग मर्द है वो हमारी मस्जिद व जमात के साथी। अगर कोई आपको पूछे कि आपकी मस्जिद व जमात में कितने कितने अफराद है तो आप क्या कहोगे? क्या बोलोगे? बोलो ना, अरे बोलो ना। 105। जोर से बोलो, घबराओ मत, ये उतरेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद व जमात के साथी 105 है, 20 मुतहर्रिक है, बाकी पर मेहनत जारी है। अगर आप इस तरीके से कहोगे तो आज नहीं तो कल आपकी मेहनत के नतीजे पर इंशाल्लाह 105 का मजमा आपकी मस्जिद व जमात में बैठेगा। हमारी अपनी नीयत ये होनी चाहिए कि 100% बालिग मर्द मस्जिद में मस्जिद व जमात के जरिए से महल्ले की और आलम की बेदीनी के खत्म करने की फिक्रों में शामिल हो जाए। पहले हम भी नहीं थे, फिर 1 हुआ, 2 हुए, 20 तक अल्लाह ने पहुंचा दिया। अब ये भाई कहते हैं कि हमने इन 5 मुसल्ली पर जैसी मेहनत होनी चाहिए ऐसी नहीं हुई, उन पर भी मेहनत करें। हमारा टारगेट होना चाहिए कि आज इनको मिलना है। अगर आपने इनको मिलकर मस्जिद व जमात की दावत देकर इनको मेहनत करके तरगीब देकर बिठा दिया तो 20 के 21 होंगे, 21 के 22 होंगे, ऐसे ही 25 होंगे। फिर ये 25 मिलकर मेहनत करे कि हमारे महल्ले में नमाजी कैसे आवे। हर मुसलमान नमाजी होना चाहिए और हर नमाजी दाई होना चाहिए। हर मुसलमान क्या होना चाहिए और हर नमाजी, ये हमारी मेहनत। हमारी मस्जिद और जमात में माशाल्लाह इनके 4 जमातें बनी हुई है। रोजाना मस्जिद और जमात के एतबार से कारगुजारी होगी। जमात नंबर 1 ये कारगुजारी सुनावे, जमात नंबर 2, जमात नंबर 3, जमात नंबर 4। इस मस्जिद व जमात के जरिए से पूरे महल्ले के तमाम मकानात की फहरिस्त होनी चाहिए। भाई 1 से 15 ये करेंगे, 15 से 30 दूसरी जमात करेगी, 30 से 45 तीसरी जमात करेगी और 45 से 57 चौथी जमात करेगी। ये नियत करे ये हमारी मस्जिद व जमात कि हमारी रोजाना मुलाकातों का निजाम बाकी रहना चाहिए। हमारी मस्जिद व जमात जब बैठे तो इस लाइन की फिक्र करे। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि गश का दिन आ गया तो मस्जिद व जमात उसी दिन, भाई आज अपना पीर के दिन गश का दिन है, देखो गश्तों की तरतीब, गश्तों में तमाम को आना, उसके साथ साथ हमारी मुलाकात चाहे ईशा के बाद आज हो जावे, असर के बाद हो जावे, सामने वाला जब मिलता हो तब मुलाकात हो जाए, लेकिन हमारा मस्जिद व जमात के जरिए से इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी 15 दिन के अंदर मुलाकातों का निजाम काबू में आ जाए। हमारी मस्जिद व जमात अगर ये 4 जमातों में से कोई एक जमात कमजोर हो गई, बाज़ मर्तबा होती है ना, या तो साथी अल्लाह के रास्ते में चले गए या किसी दुनियावी सफर में या कारोबार में या शादी वगैरह में मशगूल हो गए, तो वो जमात कारगुजारी सुनावे कि भाई हमारी कोई मुलाकात नहीं होती, हमारे पास कोई मुतकल्लिम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अरे बोलो क्या करेंगे? छोड़े रखेंगे? नहीं। दूसरी तीसरी चौथी जमात में अगर 2 या 3 मुतकल्लिम है, हम तरगीब देकर इस जमात को जो कमजोर हुई है उसको कवी बनाएंगे। भाई आप थोड़ी दिन के लिए वो साथी जमात में गए हैं, आप ये जमात में आ जाओ। बोले मैं ये महल्ले में नहीं रहता, तो ये महल्ले में नहीं रहता लेकिन इस मस्जिद के तो है ना, तो ये मस्जिद व जमात की फिक्र होनी चाहिए। हमारे यहाँ जिस दिन मस्तूरात का इज्तिमा हो उस दिन मस्जिद व जमात जो भी हमारा जिम्मेदार हो वो 1-2 मिनट की तरगीब दे दे। देखो आज अपना हफ्तावारी मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम का दिन है, आपकी 2-3 मिनट, देखो ये हमारा 20 आदमी का मजमा है, हर घर में अगर 2 मस्तूरात है, आप थोड़ी सी तरगीब दोगे तो आपके इज्तिमाई तालीम में 40 मस्तूरात की तादाद तो मस्जिद व जमात में बैठी हुई है,
इनके घरों से इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। ये मस्जिद व जमात की फिक्र है, ये हमारी जो 5-7-10 मिनट की मेहनत होती है उसी में इसलिए। आज गश का दिन है, 1-2 मिनट की तरजीब दे दो। आज कोई जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है, देखो भाई हमारी जमात जा रही है, और इनको छोड़ने के लिए जाना ये हमारे नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है। मुआज़ इब्न जबल यमन की तरफ गए तो इनको रखने के लिए, छोड़ने के लिए कौन जा रहे थे? अरे बोलो, हमारे नबी। और मुआज़ इब्न जबल को पूछा, ए मुआज़ तुम कैसे फैसला करोगे? मैंने कुरान में देखूं, अगर कोई चीज कुरान में न मिली आपकी जिंदगी में देखूं, आपकी हदीस को मैं देखूंगा, अगर उसमें कोई चीज न मिली तो मैं सहाबाई किराम से मशवरा करूंगा। फिर अल्लाह के नबी पैदल चलते रहे, हजरत मुआज़ इब्न जबल सवारी पर ले। उसामा इब्न ज़ैद जब अल्लाह के रास्ते में निकले तो उनको अलविदा करने के लिए कौन जा रहे थे? अरे बोलो, अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे। और बार बार उसामा कहते थे कि आप ऊपर आ जाओ सवारी पर, मैं नीचे हो जाऊं। तो अबू बकर सिद्दीक कहते थे कि उसामा तुम्हारा क्या नुकसान हो जावे कि मैं चंद कदम चलूं और अल्लाह पाक मेरी मगफिरत कर दे। तो अबू बकर सिद्दीक जैसे, तो हमारी मस्जिद वार जमात में अगर कोई जमात हमारी चिल्ले की, 4 महीने की, 3 दिन की जा रही है, हम थोड़ी सी तरगीब दे दें। अगर कोई जमात आई है तो मस्जिद वार जमात का काम करे और जमात जमात का काम करे, नहीं, हम तरगीब देवे। अगर कोई डॉक्टरों की जमात है, कोई वकीलों की है, कोई उलमा की है, कोई ताजिरों की जमात है, 1-2-3 मिनट देखो भाई, डॉक्टरों की जमात आई है, हमारे मस्जिद के अतराफ में 5 डॉक्टर है। देखो आज ताजिरों की जमात आई है, हमारी मस्जिद के अतराफ में 10 ताजिर है। बोलो इनकी कौन मुलाकात कराएगा? ये ताजिर लोग हैं, ये वहां के हैं, ये माशाल्लाह वक्त लगे इतने मशगूल है, उसके बावजूद भी वक्त फारिग कर गए। हमारी मस्जिद वार जमात तमाम चीजों पर निगाह करते हुए हमारी किसी भी लाइन में कमजोरी आवे उससे पहले उसका इलाज कर ले, ये हमारी मस्जिद वार जमात के जरिए से। दूसरा हमारा जो अमल है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे में चूंकि 4 जमात बनी हुई है, फहरिस्त बनी हुई है, हमारा पहला मकसद, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना कि 4 अमलों में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगावे। उसमें पहला क्या था? अरे बोलो, दावत इल्लल्लाह। हमारी ये 2.5 घंटे की मेहनत में पहला जो अमल करना है वो घर घर की मुलाकात का निजाम है। अच्छा, हम कोशिश करें कि 50% तो घर में बैठकर बात हो रही, बाकी की 50% अगर ये कोशिश कर लेवे तो बोलो हमारे इलाके में कोई इनकार करने की गुंजाइश है? अरे बोलो, अगर कोई यूं कहे कि मेरे मकान में जगह नहीं है, तो अब इनको पूछे कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने के लिए जो आते हैं उनको तुम कहाँ बिठाते हो, तो वो क्या कहेंगे? अरे बोलो ना, वो यूं कहेंगे कि घर में बिठा दे। अगर कोई ताजिर तुम्हारे घर में आकर बहुत बड़ा जमीनों का या जो तुम्हारा कारोबार है उसका सौदा करने के लिए आवे तो तुम उसको कहाँ बिठाओगे? वो क्या कहेंगे? घर में, बाहर थोड़े बिठाएंगे। अब उनको तरगीब देवे कि जैसे लड़की के रिश्ते के लिए और कोई कारोबार करने वाला, कोई इमरजेंसी काम करने वाला अगर आता है, तुम उसको अपने घर में इंतजाम करके मस्तूरात को किचन में भेज दिया, मस्तूरात को पर्दे के पीछे बिठा दिया, और जैसे उनके लिए गुंजाइश है ऐसे ये तो अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के रसूल के मेहमान है। अगर आप इस तरीके से समझाओगे तो बोलो कोई घर इनकार करेगा? तो नियत करो इंशाल्लाह आज से 100% तमाम घरों में बैठकर मुलाकातों का निजाम करेंगे। करोगे? कौन कौन करेगा? आइंदा ऐसा तो नहीं कहोगे कि 50% बाहर बैठते हैं। बाहर बैठने और अंदर बैठने में कितना फर्क है मैं आपको सुनाऊं।
अगर आपने किसी को आवाज दी अब्दुल्ला भाई, अब उसके घर में गुंजाइश नहीं है, जैसे हमारे हाजी साहब कहते हैं, वो बाहर आएंगे तो कितने आएंगे? अरे बोलो, एक अब्दुल्ला भाई। बाहर से मुराद दरवाजे से 2, 3, 4 फीट पर टेबल लगाओगे, क्या कहते हैं उसको, मोचो, चार पाइप को नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, और मोचा पर तुम बिठाओगे। लेकिन अगर आपने 4 फीट अंदर दाखिल हो गए, कितने, मोचे पर नहीं बिठाया बल्कि आप अंदर दाखिल हो गए। अब अंदर 4 भाई है, चारों की बीवियां है, कितने हो गए, और माँ और बाप है, कितने हो गए, 5 मर्द सामने बैठेंगे, 4 भाई और बाप, और 4 मस्तूरात। हम एहतमाम नहीं करेंगे उनको बिठाने का, लेकिन कुदरती अल्लाह पाक ने मस्तूरात की फितरत में बात रखी है कि अगर हमारे घर में कोई आकर हमारे मियाँ से बात करता है तो मस्तूरात चाहे किचन में हो, कपड़ा धोती हो, बर्तन साफ करती हो, लेकिन उसके कान कहाँ होंगे? अरे बोलो नहीं यार। तो बाहर बाहर निकलेंगे तो एक आदमी अब्दुल्ला भाई, और 3 फीट अंदर दाखिल हो गए तो कितने आदमी सुनेंगे? कितना फायदा हुआ? 10, यानी एक की जगह पर 10, यहाँ बाहर 1 और वहां 10। हालांकि इतना ही आधा ही घंटा लगा, बाहर बैठे तो भी आधा घंटा, अंदर दाखिल होकर सुनाया तो भी बोलो, लेकिन 10 आदमी हमारी बात को सुनने वाले रहेंगे। तो अक्लमंद तो वही है कि जो थोड़ी सी मूड़ी में ज्यादा नफा हासिल करे। तो नियत करो, इंशाल्लाह घर बैठकर मुलाकातों का निजाम करेंगे, करोगे? अच्छा, दूसरा निजाम, दूसरा फायदा क्या होगा? एक मर्तबा हमारी जमात एक घर में गई, बहुत देर तक बात की, तश्कील की, ईमान, यकीन, नमाज, 6 नंबर के पूरे मुजागरे घर में बैठकर करेंगे। सिर्फ तश्कील न करो, जाते ही जमात जवानी से તમારો શું હાલ છે, लाओ 1000 रुपया आपो जल्दी, इस तरीके से तश्कीलें होती है। कुरान ने जब भी तश्कील की है तो पूरी तरगीबी बात बतलाई है, आखिर में तश्कील करी। तो हम भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। दूसरा, उनसे मानूस की बात करें, मानूस करें। भाई पहली मर्तबा या महीने में दूसरी मर्तबा आप गए तो जाते ही, भाई साहब कैसी तबीयत है, अगर वो बीमार है तो इनकी बीमारी पूछ लो। अगर उनके बच्चे बंबई रहते और आए थे, भाई साहब तुम्हारा छोकरा आया था, जता रहे। आप इनकी दुनियावी लाइन की कोई तस्करा करोगे तो ये आपकी तरफ मानूस होंगे। फिर आप अपनी बात रखो, ईमान की बात, नमाज की बात, इल्म की बात, जिक्र की बात। तश्कील तो 6ठा नंबर है, तश्कील क्या है, 6ठे नंबर पर जाकर बात, और सख्ती नहीं, हंसते हंसाते प्यार के साथ मोहब्बत करते हुए ऐसे अंदाज से बात करो कि उसको पता भी नहीं चले और उसकी तश्कील हो जावे। होता है ना वो, क्या कहते हैं, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर की दवा कड़वी से कड़वी हो, लेकिन ऊपर का खोलिया ऐसा हो कि आदमी कैप्सूल पेट में डाल भी देता है और उसको पता भी बोलो कि मैंने इतनी कड़वी गोली इस्तेमाल कर। हमारी दावत की मेहनत भी उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ा, तश्कील सबकी करनी है। अच्छा, तश्कील करोगे, पहले पहले हमारी तश्कील कितने महीने की होगी? 4 महीने की। ओके, अपने पास टाइम नहीं है 4 महीने का, तो गरम नहीं हो जावे, बद्दुआई नहीं देवे, बहस मुबाहिसा नहीं करे। अच्छा भाई चलो 4 महीने की बात नहीं तो चिल्ला लगा दो, जो मूल साहब आज सीजन नो टाइम छो चिल्लू भी नहीं जो, तो क्या गर्म हो जाओगे? अरे बोलो, तो क्या करोगे? कहीं वांधो नहीं, ऐसा कहीं वांधो नहीं, જ્યારે તમારી પાસે ટાઈમ હોય ત્યારે જજો। 3 દિવસ
जो अठवाડિયામાં टाइम નથી हो, ये हफ्ते में मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल 3 दिन की बात मत करना, तो आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, हाजी साहब हमारी तो दूसरे हफ्ते की भी जमात है, देखो दूसरे हफ्ते में मेरे यहाँ शादी है, कोई बात नहीं, ऐसा तीसरे हफ्ते में जाना, तीसरे हफ्ते में मेहमान आने वाले, वो जरा जोर से बोलेगा, आप नरमी बात करोगे, वो कड़क बात करेगा, तो आप क्या कहोगे? आप भी कड़क बन जाओगे? नहीं, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह ने फरमाया ए नबी जी हमने आपको अपनी रहमत से नरम बनाया, वलौ कुंत फद्दन गलीदल क़ल्ब लन फद्दु मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते तो ये जो आपके इर्द गिर्द सहाबा का मजमा है ना, जो आपके थूक को भी नीचे नहीं गिरने देता और आपके साथ अजमत के साथ रहता है, वो आपके इर्द गिर्द नहीं रहता। अल्लाह पाक ने मूसा और हारून को जब जा रहे थे फिरौन के पास, तो आपने क्या कहा? कुलू कौलन लय्यिना, नरम बात करना। हमारी दावत की मेहनत में कहीं भी सख्ती नहीं है। अच्छा हाजी साहब, तीसरे हफ्ते में आपके मेहमान आने वाले हैं, तो चौथा हफ्ता आदमी इनकार करते करते कितना करेगा? आ डिसेम्बરના મહિનામાં तो મને टाइम જ નથી, तो आप क्या करोगे? कोई हरकत नहीं, जनवरी में चले जाना, जनवरी में भी नहीं जवाए, फेब्रुआरी से शुरू कर दो, कहीं ने कहीं तो उसको लाओ। आ महीने तवे तो 3 दिन आप नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, ऐसा हमारे यहाँ मस्जिद की तालीम होती है, हमारे यहाँ पीर के दिन गश्त होता है, पहले गश्त में आप आते हैं तो आप दूसरे गश्त की दावत दो, किसी न किसी तरीके से उसको जो दीन का सतह उसका है उससे ऊपर की अजाइम नियत इरादा करके आप वापस आओ। ये नहीं कि सिर्फ बात करके आ गए और सुबह में लिखा दिया भाई शू थયું 5 घरनी मुलाकात थी, नतीजा क्या हुआ? अरे बोलो, उसने कोई नियत नहीं की, तालीम के हल्के में नहीं बैठते। ये जो हमारे 20 साथी जो बरसों से बैठते हैं, तो घर घर की मुलाकात में वही नमाजी जो 25 आते हैं, उनके घरों में जाकर अगर उसने चिल्ला नहीं दिया, 4 महीने ना कहता है, 3 दिन की ना, तो कम से कम उनको यूं तो कहना चाहिए हाजी साहब तुम फजर की नमाज में आते हो तो हमारी मस्जिद व जमात तो बैठती, आप भी एक 10 मिनट बैठ जाओ। हमारा तो सिर्फ चिल्ले 4 महीने की तश्कील नहीं होती, बल्कि 5 अमलों की भी दावत हो और फिर उसकी वसूली भी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, 4 महीने जिसने नाम लिखाया उसकी वसूली करते हैं, चिल्ला लिखाया उसकी वसूली करते हैं, लेकिन जिसने यूं कहा कि मैं आज तालीम के हल्के में बैठूंगा, आज तक नहीं बैठता था, आज उसने नियत की घर घर की मुलाकात के जरिए से, तो आप उसकी वसूली कैसे करोगे? अरे बोलो, पैसे मांगोगे? तालीम ना ना पैसा, 4 महीने तो बाहर जाने का टिकट के पैसे होते हैं, आप उसकी तालीम के हल्के में बैठने की नियत करने वालों की आप कैसे वसूली करोगे? एक तो आप इसके साथ मस्जिद में आओगे, जहां ये नमाज पढ़ेगा उसके करीब में नमाज पढ़ोगे, हाथ मुसाफा करके, ऐसा माशाल्लाह भी नमाज के बाद तालीम होगी, और अपने ने कल नियत की है ना, आप और मैं हम दोनों तालीम में, उसको अकेले को न कहे कि तुम तालीम में बैठना, बल्कि कहीं भी बात करनी है तश्कील की तो अपनी जात को शरीक करने का, आप और मैं अपने दोनों तालीम में बैठेंगे, तो वो कहेगा यहाँ मैंने नियत की थी लेकिन मैं भूल गया और मैंने काम जिम्मे ले लिया है, तो आप नाराज हो जाओगे? अरे बोलो, कहीं मत नहीं, आइंदा कल से, फिर आप कल बैठो, उसके बाद कल भी ओके कि नहीं मेरे को तो बच्चों को मदरसे रखने जाने का है, तो कोई बात नहीं, परसों। यानी आपका मकामी मेहनत के अमाल के ऊपर जिस अमल पर वो आमदा हुआ है उसकी वसूली करने की जिम्मेदारी ये हमारी है। ऐसे ही एक एक करके आदमी बढ़ेगा, 20 के 21, 21 के 22, 22 के 23 हो गया। अरे गुजराती में कहावत है ना, टीपे टीपे, तो ऐसा टीपे टीपे सरोवर भरने का है। अच्छा, दूसरी बात मैं बात कर रहा था, वो एक जगह हम लोग तश्कील में गए,
बहुत देर समझाने के बाद मर्द ने कहा कि मैं 4 महीने जाऊंगा। तो अपने क्या करते हैं, उतावड़े पीर होते हैं ना, ला वसूली आपको 1000 रुपया। बोले वसूली नहीं आपको, वसूली मैं नहीं दूंगा। इसकी बीवी घर में बैठकर सुन रही थी, और वो जो जमात में गए थे उसका रिश्तेदार थे। ये वो जो औरत और ये मुतकल्लिम जो गया था वो करीबी रिश्तेदार थे। तो उन्होंने समझाया कि भाई वसूली, भाई वसूली मैं नहीं दूंगा। जब बाहर निकले ना तो ये मस्तूरात ऊपर से 500 की नोट फेंकी और यूं कहा, लो ये मेरे शोहर की वसूली ले लो। ये कब वसूली आई, जब आपने घर बैठकर समझाया। तो मर्द का जहन तो नहीं बना, लेकिन मस्तूरात का जहन बन गया कि वसूली देने से ये पक्के हो जाएंगे। और मस्तूरात की बात अगर तय हो जावे, किसी की बीवी यूं कह देवे कि तुमको जाना ही जाना है, तो बोलो कोई मर्द की ताकत है कि औरत के अगेंस्ट में जावे? अरे बोलो नहीं यार। मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया में वो आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक से निकाला और फिरौन के तेवर देख लिए कि ये तो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने वाला है। तो इसने फौरन, आसिया ने क्या कहा जिसको कुरान में नकल किया, ला तख्तुलू, फिरौन इसको कत्ल मत करना। अब फिरौन के दादा की भी ताकत है कि अब उसको कत्ल करे? अरे बोलो, जब फिरौन की बीवी ने फिरौन को कह दिया ला तख्तुलू, अब बोलो ये कत्ल कर सकता है? ये पहले से चला रहा है। इसलिए अगर बीवी का जहन बन गया और बीवी ने तय कर दिया कि तुमको जाना है 4 महीने, तो बोलो जाना ही पड़ेगा। ये हमारे घर घर की मुलाकात का नफा है। तो नियत करो, इंशाल्लाह घर में बैठकर बात करेंगे और 15 दिन में इंशाल्लाह तमाम की मुलाकात करेंगे। और तमाम घर नहीं, बल्कि बोलो 105 अफराद, इनकी मस्जिद की बात चल रही, किसकी मुलाकात करेंगे? अगर घर पति मुलाकात कर ली तो 57 घर तो हो जाएंगे, लेकिन 105 अफराद की मुलाकात नहीं होगी। और बाजे बाजे फर्द ऐसे होंगे कि बरसों बरस हो गए हमारी मस्जिद के अतराफ में रहने के बावजूद भी इनकी मुलाकात नहीं हुई। ऐसा होता है आपके वहां? अरे बोलो, होता है कि नहीं? तो नियत करो इंशाअल्लाह कि तमाम अफराद की मुलाकात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं सुनाऊं आपको। ये जो 2.5 घंटे, ये हाजी साहब ने एक बात कही ना, रोज एक मुलाकात होती है। तो मैंने पूछा कि एक ही घर में 2.5 घंटे आप लगाते हो? तो इन्होंने क्या कहा, हमारे यहाँ एक आदमी किसी मस्तूरात के पास जो रिश्तेदार था, पूछा कि भाई अब्दुल्ला भाई कहीं से? तो मस्तूरात ने जवाब दिया कि वो तो 2.5 घंटे में है। कहाँ गए? ये अब्दुल्ला भाई लेट से आए घर में ईशा के बाद। हमारे यहाँ ईशा के बाद मुलाकात होती है। तो बीवी ने पूछा कि क्यों देर हो गई? तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं 2.5 घंटे की मेहनत में था। तो बीवी समझदार थी, बीवी ने कहा 8 बजे तो ईशा होती है, 8:30 की आप मुलाकात में गए और अभी तो 9 बजे है। कितने बजे हैं? और मैंने आपको पूछा कि कहाँ गए थे, तो अब्दुल्ला भाई ने यूं समझा कि औरत को क्या पता चले, डांट दे के उन्होंने क्या कहा। तो बीवी ने पूछा कि 2.5 घंटे कहाँ हुए? बोले वो 2.5 घंटे थे, वो आधा घंटा क्या है? आपके यहाँ भी ऐसा होता है? अरे बोलो नहीं। घर जाकर अगर पूछे बीवी के कहाँ गए थे, तो आप भी ऐसा ही कहते हो 2.5 घंटे में। मालूम है शुरू में मेवात की जमात जब आती थी तो वो 3 दिन के लिए निकले, उसको भी क्या कहते थे? चिल्ला। और 10 दिन की जमात आती थी उसको भी, और चिल्ले की जमात भी। तो आज हमारा हाल भी ऐसा हो गया कि 15 मिनट लगे उसको भी, और आधा घंटा लगे उसको भी, और 1 घंटा लगे उसको भी। तो फिर मैं कहता हूँ 2.5 घंटे से मुराद 2 घंटे
29 मिनट और 60 सेकंड का नाम 2.5 घंटे है। जरा बोलो ने, 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड, इसका नाम क्या है? 2.5 घंटे पूरे कौन लगाता है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, आज से नियत करो, पक्की बात। 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड पूरे 2.5 घंटे लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? अच्छा, ये हाथ तो तुमने गुज़िश्ता साल भी उठाए थे, मालूम है? अरे बोलो नहीं यार, फिर क्या हो गया? भूल गए? इस साल तो नहीं भूलोगे? आइंदा साल अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर अपने मिलेंगे और फिर आपको पूछेंगे। तो आप जैसे अभी मुखलिस बनकर खामोश बैठे रहे, आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है? इंशाल्लाह अगर आप नियत करोगे ना। मैं आपको सुनाऊं, एक डॉक्टर साहब मेरे को मिले, बोले हमारे बस में तो 2.5 घंटे लगाना है ही नहीं। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अल्लाह ने जिम्मेदारी दावत की दी हो और हम दावत का काम नहीं कर सकते। बोले हम तो डॉक्टर लोग हैं। फिर मेरे को बोलने लगे, मौलाना मैं वो चालू डॉक्टर नहीं हूँ। क्या मतलब? बोले बाजे डॉक्टर का एक ही दवाखाना होता है, मेरे तो 3 दवाखाना है। अच्छा, अब मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठो, मैं पूछूं उसका जवाब दोगे? हाँ। बोले पहला दवाखाना तुम्हारा कितने बजे खुलता है? बोले 10 से 1 तक मेरा दवाखाना खुलता है। मैंने कहा लिखो 3 घंटे। 10 से 1 का माना कितने घंटे? 3। दूसरा दवाखाना कब खोलते हो? बोले 3 से 5:30। मैंने कहा लिखो 2.5 घंटे। 3 और 2.5। तीसरा दवाखाना आपका कब खुलता है? बोले 7 से 10। मैंने कहा 3 घंटे और लिखो। कितने हो गए? 8.5 घंटे हो गए। और डॉक्टर साहब क्या करते हो? बोले हम तुम्हारे जैसे नहीं है। अच्छा, हम 6 घंटे पूरी नींद लेते हैं, लिखा हुआ है कि कम से कम आदमी को कितने घंटे सोना चाहिए। मैंने कहा लिखो 7.5 और 6। अरे बोलो नहीं, 13.5 हुआ ना? 14 गणित कच्चा है। 7.5 और 6 मेरे को बताओ कितने हुए? तो 14.5 क्यों बोले? मेरे को लगता है कि गणित के नंबर तुम्हारे गलत आ गए। 13.5 कितने हुए? मैंने कहा डॉक्टर साहब और क्या करते हो? बोले हम तुम्हारे जैसे नहीं खाते, निगलते नहीं, हम चबा चबा के खाते। अच्छा, चबा चबा के खाते हो कितने घंटे? बोले 3 वक्त का 1.5 घंटा। अच्छा गिनो 13.5 और बोले मेरे को ना अच्छी तरीके से इस्तिंजा में वक्त लगता है, गुस्ल में वक्त लगता है। अच्छा गिनो कितने? बोले 2 घंटे। कितने हुए? और मैंने क्या करते हो? मैं रोजाना, तुम तो खाली बातें करते हो ना, मैं रोजाना असर के बाद 1 घंटा जिक्र कुरान में लगाता हूँ। अच्छा, कितने हो गए? 18। कितने हो गए? और क्या करते हो? बोले तुम तो बातें करते हो, मैं रोजाना अपनी बीवी बच्चों के साथ तालीम में 1 घंटा लगाता हूँ। गिन लो। अब क्या करते हो? बोले रोजाना नई नई दवाएं आती है ना, तो कंप्यूटर पर बैठकर मैं रिसर्च और मुताला करता हूँ। कितना चाहिए? 1 घंटा। लिख लो। अब तो कुछ बार आ रहा नहीं, वो सर खुजालते रहे और मैंने इनके हाथ में पर्चा दे दिया कि 24 उसमें से 20 माइनस हो गए, 4 घंटे तुम्हारे पास है। ये 4 घंटे तबलीग के है। अगर तुम्हारे जैसा 3 दवाखाने वाला अगर वो यूं कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है,
تو ہمیں اللہ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ ان کے لیے 20 گھنٹے کا دن دے رہے، 20 گھنٹے تو یہ مشغول ہے، اور سب اچھی سوتے بھی برابر ہے، چبا چبا کے کھاتے بھی ہے، مطالعہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، استنجا بھی اچھی طریقے سے کرتے، یہ سب ملا کر بھی کتنے گھنٹے ہوئے؟ تو کوئی آدمی دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس 2.5 گھنٹے نہیں ہے۔ ارے بولو سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ اچھا میں مدرس کا گناؤں، تاجروں کا گناؤں؟ ارے بولو نہیں، ٹریول کا گناؤں، ٹریولنگ جو کرتے ہیں؟ ہمارے سورت میں 500,000 آدمی روزانہ بمبئی جاتے، کتنے روزانہ بمبئی جاتے، اور روزانہ بمبئی سے ریٹرن ہوتے۔ ان کو بھی ایک دن میں نے گنا کے بتایا کہ تیرے پاس بھی 2.5 گھنٹے تو ہے۔ یعنی یہ سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں ایک آدمی اپنے آپ کو یوں کہے کہ میں صبح 6 بجے دکان کھولتا ہوں اور رات کو 1 بجے بند کرتا ہوں، تو وہ تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ تم اتنی مشغولی اپنا آپ کو دکان کھولنا اپنے اختیار میں ہے، تم 8 بجے کھولو، تم 10 بجے کھولو۔ ہمارا یہ مجمع یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ارے بولو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک جگہ ایک آدمی کہنے لگا، مولانا آپ تو روزانہ 8 گھنٹے کاروبار کے لیے کہتے ہو، میں تو سال میں، پورے سال میں 3 دن کاروبار کرتا ہوں۔ کتنے دن؟ 3 دن، اور اللہ پاک 360 دن کی روزی دیتا ہے۔ تو میں نے کہا بتانا ہے؟ بولے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ مجمع کو بھی مت بتانا، اس مجمع کو بتانا جو مجمع ہر سال 4 مہینے لگاوے۔ تو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، جو 4 مہینے لگائیں گے نا، وہ 3 دن کا کاروبار میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاد دلانا ایسا۔ چلو ایک اور ساتھی آ جاؤ۔ بھائی آ جاؤ۔ ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے تھے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں کو تو فوجی کی طرح رہنا چاہیے۔ کیسا رہنا چاہیے؟ ملٹری ہوتی ہے نا، ایسا رہنا چاہیے۔ اور 3 منٹ میں کھا لیتے ہیں، 5 منٹ میں غسل کر لیتے ہیں۔ چلو آپ کے وہاں تعلیم کب ہوتی ہے، کتنے آدمی ہوتے ہیں، کون سی کتاب کی ہوتی ہے، پوری تعلیم کا عمل سنا دو۔ کم سے کم 10 منٹ ہوتی ہے، اور اس میں 100 کے قریب ساتھی ہوتے ٹوٹلی نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ہیں۔ نمازی تو 200 قریب۔ اس میں سے 50% بیٹھتے ہیں، ماشاء یہ کب سے 50% بیٹھتے ہیں؟ 100 آدمی کمی بیشی رہتی ہے۔ کمی تو نہیں چلے، بیشی چلے ہے بھائی۔ کبھی ایک آدمی کا پگار 10,000 ہو گئے، اور دوسرے مہینے میں سیٹ کیے رہے کہ اچھا 8,000 لے جاؤ، کوئی چلائے گا؟ کمی نہیں چلے گی، بیشی چلے گی۔ ہاں تو جب کمی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ کرتے، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ 10 منٹ کی تعلیم جو ہوتی ہے، وہ کون سی کتاب سے، کون سے باب سے پڑھتے ہیں؟ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ او میرے بھائیو، او بھائی، اچھا اب کون جائے گا؟ ایک بات سمجھ لو، آپ کے یہاں سے احمد آباد ایکسپریس بس جاتی ہے جو کہیں نہیں رکتی، کتنے گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے احمد آباد؟ 3 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ ابھی آپ سب یہ سمجھ لو کہ ہم ایکسپریس بس میں بیٹھ گئے۔ آپ یوں کہو کہ ایکسپریس بس میں کنڈکٹر کو بار بار کہو میرے کو پیشاب لگی، تھوڑی دیر کے بعد 2 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی کہے کہ میرے کو 2 نمبر، تو بس کھڑی، اب تو کوئی نہیں جائے گا نا۔ تھوڑا تھوڑا اچھا یہ 10 منٹ کب سے ہوتی ہے؟ ابھی شروع ہوئی؟
यानी कितने ये किताब तो तकरीबन 70-80 साल तो हुए होंगे। मौलाना इलियास साहब के जमाने से हुआ है और मौलाना का इंतकाल हुआ 44 में, तो अगर 40 में भी हुई हो तो 60 और 20 80, जब से आप पैदा हुए तब से होश संभाला। चलो कोई बात नहीं, तो उसको भी तो 20 साल हो गए ना आपने होश संभाला। कितने साल हुए आपको? 40। तो मदरसे में 20 साल की उम्र में फारिग हुए ना? 22। तो 18 साल तो हुए ना। गोया कि 18 साल में 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुई। ऐसा ही हुआ ना, इस्तिकामत के साथ चल रहा है। हालांकि गुज़िश्ता साल आपके सामने बात हुई होगी, कितनी देर तालीम होनी चाहिए आपको भी तो मालूम है, तो फिर क्यों ऐसा? अच्छा, बाजे मर्तबा आदमी क्या कहता है, कोई गांव में ऐसा होता है ना, अल्लाह भाई पहले हाजी साहब तो यूं कहता, ये तो कया कर है, तो जो हर साल यहाँ बात होती है वो भी ऐसी होती है। कभी बढ़ा देते हैं, ऐसा हुआ? कितनी मर्तबा हुआ? कभी 12-15 मिनट 12 मिनट हो जाती तो भी साथियों पे असर हो गया। फिर उनको तरगीब नहीं देते? देखो, किसी भी काम के लिए हमारे यहाँ तरगीब है, आप इसको कहते हैं भाई देखो इसका ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, चलो अपने कल से 1 मिनट बढ़ा देवे तो मजमा हाँ कहेगा, और आपने ऐसे ही बढ़ा दी तो मजमा बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, दोनों किताबें मुकम्मल हो जाती है, फजाइल अमाल ना फजाइल सदका। और घर की तालीम का क्या है? नहीं, कितने मकान आते हैं, कितने घरों में तालीम होती है? माशाअल्लाह। तो उन 35 घरों में नहीं होती, वहां किसी ने चिल्ला 4 महीना लगाया? नहीं लगाया। ये 190 घरों में कब से होती है? पहले, यानी बढ़ रही है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, घरों में कभी आपने मुज़ाकरा किया कि भाई कितनी देर तालीम होती है और क्या क्या अमल होता है? आपके घर में होती है? कितनी देर होती है? 20 मिनट उसमें तालीम करते हैं। और 6 नंबर का मुज़ाकरा कब होता है, कौन करता है? दोनों करते हैं, यानी हमेशा एक नहीं? बच्चे नहीं है? कितने साल के? 10 साल। तो वो नहीं करता? आपकी तालीम मगरिब के बाद होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हजरत जी फरमाते थे कि ऐसे वक्त में घर की तालीम होनी चाहिए जब घर के तमाम अफराद मौजूद हो। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। 24 घंटे में कोई एक वक्त ऐसा होगा जिसमें आप, आपकी बीवी और आपका बच्चा ये सब मौजूद होंगे, ऐसा कोई वक्त है? वो मेरा सवाल क्या है, ऐसा कौन सा वक्त है कि जिसमें आप तीनों घर में होते हैं? खत्म हो गई बात, आप बिस्मिल्लाह करो, फिर उसमें से वक्त निकालो। चूंकि बुजुर्गों ने जो बात बतलाई है उस पर अल्लाह पाक की तरफ से रहमत और मददें होती है, मशवरा करके तय हुआ है। अगर आप ऐसा करोगे कि ईशा के बाद में नहीं होता ना सुबह में बच्चा नहीं होता, तो बच्चा बड़ा होने के बाद, मालूम है, माए, बैठ जाओ, माए बच्चों को बचपन से जो बड़े खाते हैं ना वो खिलाती है। हर मौसम का फल आता है ना, तो माए बच्चों को भी बोलो, हालांकि 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, जो आप ठंडी के दिनों में क्या बनाते हैं, कहार, और वो पूरी रात बनता है, उसको क्या कहते हैं?
लापसी है ना, पूरी रात में। उसकी भी माँ बच्चों को पहले दिन से आदत डालती है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो जितनी रोटियां आप बनाते हो ना, गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, मकई की, जो बनाते वो सब माँ क्या करती है? अरे बोलो नहीं यार, क्यों खिलाती है? अरे ये क्यों खिलाती है? आदत पड़ जावे। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, जो बच्चा बचपन से लेकर हमारे घर में 20 साल की उम्र तक फारिग हो गए, न शादी हो गई, न उसके पास इतना वक्त, वहां तक अगर वो घर की तालीम में न बैठा, तो बोलो 20 साल के बाद उसकी आदत पड़ेगी? अरे बोलो नहीं यार, नहीं पड़ेगी। ऐसे हर चीज में माए कुछ दिनों तक तो अपने हाथ से खिलाती है बच्चों को, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या कहती है? तू तारा हाथ खा। अरे बोले ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? जो बच्चे माए उनको 2-3 साल तक खिलाती रहती है, तो फिर वो बच्चा 5 साल की उम्र तक भी कहता है अम्मी को कि तू खिला। मश्क होती है। हमारी घर घर की तालीम उसकी पहले दिन से, हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ऐसा वक्त तय कर लो जिसमें मर्द, औरत, बच्चे, यहाँ तक कि हमारा 6 महीने का दूध पीता बच्चा भी हमारी घर की तालीम में होना चाहिए। अब आप कहोगे कि 6 महीने के बच्चे उसको क्या समझ पड़े? तो शरीयत ने जब बच्चा पहले दिन पैदा होता है, एक कान में और दूसरे कान में क्यों कराई? बच्चा तो आंखें भी नहीं खोली। ये तो अभी 4G और 5G और 6G चलता है ना, तो बच्चा फौरन आंख खोल देता है। आप और मैं जब पैदा हुए ना, तो हमारी आंख कितने घंटे के बाद खुलती थी मौलाना? 8 घंटे के बाद। 8 घंटे तक तो बच्चा आंखें नहीं खोलता था। फिर भी आंखें बंद होने की हालत में भी बोलो मेरे कान में अजान दी है, आपके कान में दी है। तो ये असरात है। नियत करो इंशाअल्लाह हमारे घर की तालीम ऐसे वक्त में जबकि मियाँ बीवी बच्चे सब मौजूद होंगे तब करेंगे। हमारे घर के तालीम के असरात हैं। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना यूसुफ साहब के हवाले से कहते थे कि हमारे घरों में जो सुराखों से बेदीनी आती है, घर की तालीम की बरकत से अल्लाह पाक उन तमाम सुराखों को बंद कर देगा। कोई छोटी मोटी बात है? हमारे घरों में मसलन नमाज नहीं है। बाज मर्तबा होते है कि दादा बहुत नमाजी होता है, बहुत दीनदार होता है, बाप भी बहुत दीनदार होता है, लेकिन पोता, हमारे एक हाजी साहब थे, वो बराबर तहज्जुद के, इशराक के, चाश के, अव्वल सब के, तकबीर उला के पाबंद थे। मैं एक दिन उनके घर गया तो मैं नमाज पढ़ कर आया, तो वो दादा ने अपने पोते को पूछा, बेटे नमाज पढ़ी? तो उसने टोपी सर पर रख ली और दादा को कहने लगा, देखते नहीं मैंने टोपी पहनी है? नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन क्या कहता था, तुम देखते नहीं मेरे। ये क्या हुआ कि घर में बेनमाजी है, तो मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि जिन सुराखों से बेदीनी घरों में आती है, इस घर की तालीम की बरकत से अल्लाह पाक उन तमाम सुराखों को बोलो हम मेहनत करें। अब वो दादा मेहनत नहीं करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पोता नमाजी नहीं है। अगर घर की तालीम, और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वाकयात है कि पहले मर्द ने तालीम की। एक आदमी हजरत जी के पास आया, मेरी बीवी बच्चे मानते नहीं, मैं क्या करूं, मेरी तालीम में बैठने से इनकार कर देते। हजरत जी कोई तावीज दो ने। क्या कहा? हजरत जी कोई तावीज दो ना कि बीवी बच्चे मान जावे। हजरत जी ने कहा कि तू किताब खरीद करके चालू कर दे, ये तेरा तावीज है। अब उसने तालीम शुरू कर दी। कोई नहीं बैठता था, अकेला था। बीवी किचन में, बच्ची अपनी पढ़ाई के रूम में,
उसने थोड़ी जोर से तालीम करना शुरू की तो बेटी के कान में बात आई और अल्लाह उसके रसूल की बात असर किए बगैर नहीं रहती। बेटी को अच्छी लगी तालीम तो वो करीब आई, और अच्छी लगी, अल्लाह के नबी की हदीस तो अच्छी होगी, वो दिल में उतरी और करीब आई और करीब आई। फिर उसने तय किया कि तालीम के वक्त में मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं भी अब्बा के साथ बैठूंगी। बीवी किचन में है, बेटी ने उनकी तश्कील की कि अम्मी बात तो बहुत अच्छी अच्छी अब्बा पढ़ते हैं, इनको मालूम नहीं हदीस क्या है, फजाइल अमाल क्या है, अम्मी तुम भी सुन लो ना। तो कभी ऐसा होता है कि शोहर की बात बीवी ना माने, लेकिन लड़की की बात तो, अरे बोलो नहीं यार, माने। अब बीवी करीब आई, बाप ने लान तान नहीं किया, खाने के वक्त में ताना नहीं दिया, तब खाने तो बैठ जाते हो, तालीम में क्यों नहीं आते, ऐसा नहीं कहा, हिकमत के साथ। अब बीवी करीब आई आई और वो भी बैठती होगी। जब बीवी ने देखा तो ऑटोमेटिक नमाज, पर्दा, 3 दिन, तस्बीह। अब ये आहिस्ता आहिस्ता, तो पहले दिन से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों की बेदीनी को अल्लाह खत्म करे, तो बहुत आसान नुस्खा ये है कि हम फजाइल अमाल, फजाइल सदकात की तालीम शुरू कर दें। और दूसरी बात, एक तो ये है कि तालीम हो रही। एक आदमी हजरत जी के पास आया, हजरत जी ने पूछा तालीम होती है तेरी मस्जिद में? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जोर से बोला। तो सामने तो मुरब्बी कामिल थे, उन्होंने पूछा कि तू बैठता है क्या? पूछा तो वो गर्दन नीचे कर दी। पहले क्या बोला और फिर? तो हजरत जी ने कहा कि तेरे हक में तालीम नहीं हो रही, मस्जिद में हो रही है, जो बैठते उनके हक में हो रही है, लेकिन तू नहीं बैठता तो तेरे हक में तालीम, तेरे को तो कोई फायदा ही नहीं। ऐसे मैं आपको पूछूं, ये जो हमारा मजमा माशाअल्लाह, ये भाई ने कहा ना कि 225 घर है और 190 घरों में तालीम होती है, घर में तो तालीम होती है। इनमें से ये जो बैठे हैं, इनमें से किनके घरों में तालीम का अमल होता है? बराबर हाथ उठाओ ना, सबके घर में होता है। अब हाथ उठाए रखना। अच्छा, अपनी जात से कौन शरीक होता है? कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर दिए, क्या मतलब? घर में तालीम तो होती है लेकिन उनके हक में तालीम। अब नियत करो, घर में तालीम भी करेंगे और अपनी जात से शरीक भी होंगे। करोगे? देखो, नफा तो तभी है जब हम किसी अमल में शरीक होवे। बाकी हमारे हमारे गांव में सबकी दुकानें बहुत अच्छी चलती है, तेरी दुकान चलती है, मेरी नहीं चलती, तो इसको फायदा होगा? सबकी चलती है लेकिन मेरी नहीं चल रही। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, सबके घरों में तालीम होती है लेकिन मैं नहीं बैठता। तो नियत करो इंशाल्लाह, आज से हम सब अपने घर की तालीम में शरीक रहेंगे। कौन कौन रहेगा? अच्छा, ये हाथ तो आपने गुज़िश्ता साल भी उठाए थे, उठाए थे? अरे बोलो, उठाए थे? अच्छा, किसने उठाए थे और इस साल तालीम नहीं हो सकी? चलो आज नियत करोगे इंशाल्लाह पक्की तालीम में बैठेंगे। ऐसे मस्जिद की तालीम, हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने के पूछा, ये क्या घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, अल्लाह के रास्ते में जाकर 4 घंटे तालीम, ट्रेन में तालीम, कहीं पार्क में गए तो वहां, आप क्या चाहते हैं? हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने समंदर को कूजे में भर दिया। क्या फरमाया आपने? हम ये चाहते हैं कि तालीम, हमारी मालूमात, जितनी हमारी मालूमात है वो सब के सब मामूलात में मुंतकिल हो जाए।
जितनी हमारी जरा बोलो ना मालूमात है वो सब के सब बाजे मर्तबा आदमी को क्या होता है, आमतौर पर सब मुसलमानों को मालूम है कि नमाज पढ़ना, लेकिन बोलो पढ़ते, इल्म में है लेकिन अमल में, अगर इल्म में है और अमल में नहीं है ये तो बहुत भारी नुकसान है। कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, जैसे गधे पर कोई किताबों का बोझ होता है, उसको कोई फायदा है। और अगर आपके इल्म में है, हम एक मर्तबा एयरपोर्ट जा रहे थे बंबई में, एक आदमी कहने लगा, जो टैक्सी ड्राइवर था गोरखपुर वगैरह के, मेरे को कहने लगा बहुत देर बात करने के बाद, मौलाना मेरे को कब्र का अजाब नहीं होगा। क्या कहा? अजाब कब्र मेरे को नहीं होगा। तो मैंने कहा तेरे ऊपर वही आई? अरे बोलो, वही का दरवाजा तो बंद हो गया। बोले ऐसी बात नहीं है। मैं एक दिन बांद्रा की जामे मस्जिद में गया और जुमा के बयान में मैं पहुंचा तो एक बयान करने वाले मौलाना ने ये कहा, जो आदमी रात को सोते हुए तबारकल्लज़ी की तिलावत करेगा, अल्लाह कब्र के अजाब से उसकी हिफाजत करेगा। बोले उस दिन मैंने तय कर ली कि जो सुना है उस पर अमल करूंगा। मैं रात को कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, इसलिए कि मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं रात को 12 बजे आकर सोने से पहले तबारकल्लज़ी की तिलावत करता हूँ। उस दिन से, जिस दिन से सुना है, आज तक कभी भी नागा नहीं हुआ। मैंने बराबर सूरे मुल्क की तिलावत की। क्या अल्लाह पाक मेरे को कब्र का अजाब देगा? अरे बोलो, मैं क्या कहूंगा? अरे बोलो, मैं क्या कहूंगा? अब मैं कहूंगा वही आई? अरे बोलो, नहीं। हमारी मालूमात वो हमारे मामूलात में मुंतकिल हो जाते। अच्छा, जब तक बाजे मर्तबा आदमी कहता है एक मर्तबा तो सुन ले, मैं तो फजाइल है बाजे आदमी। अब देखो, इतने अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं और फजाइल अमाल की तालीम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बाजे मर्तबा कोई नया आदमी कोई भूल करता है ना, तो ये बगैर देखे उसको लुकमा देता है। अरे बोले ऐसा होता है? क्या मतलब? उसको याद तो है लेकिन अमल में है कि नहीं है, असल वो है। याद तो माशाल्लाह हम सबको है। मैं सूरह वाक़िया की फजीलत आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की फजीलत, सिला रहमी की फजीलत, एक सुभान अल्लाह, लेकिन अमल में है कि नहीं? हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने समंदर को कूजे में भर के क्या कहा कि हमारी जितनी मालूमात है वो सब बोलो। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत बोलो, सब जानते हैं कि नहीं? इशराक की फजीलत बोलो, सब जानते हैं कि नहीं? पूछूं मैं आपको? फिर मेरी बात नकल मत करना कि यार ये मौलवी यासीन आके पूछ के गए हमको। ऐसी बात नहीं। हमारे एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे बंबई के, नाम नहीं लेता मैं। एक मर्तबा इन्होंने फजर के बाद बयान किया, उसके बाद इन्होंने इशराक की फजीलत बयान की, है ना, आमतौर पर बयान करते हैं, पहली 2 रकात पर, दूसरी 2 रकात पर, जो भी। फिर वो जाकर सो गए इशराक के पढ़े बगैर। एक नया आदमी जमात में था और जमात में चल रहे थे, उन्होंने उनका अंगूठा हिलाकर यूं कहा, हजरत आपने जो फजीलत बयान की वो हमारे लिए सिर्फ थी कि आपके लिए भी थी? बस इतना ही बात करी। वो जो फजीलत आपने बयान की वो सिर्फ हमारे लिए है कि आपके लिए भी उसमें है? वो जिम्मेदार जो थे वो कहने लगे, उस दिन से लेकर आज 40 साल हो गए, मेरी कभी इशराक की नमाज नहीं छूटी। क्या मतलब? लोग देखते हैं, हमारे मौलाना कहते हैं ना, फीना उयूब, हमारे अंदर ऐब है, और इंदन्नास उयून, लोगों के पास आंखें हैं। हमारी मस्जिद वार जमात के साथी, हमारे महल्ले के लोग कि ये तालीम में बैठते हैं लेकिन कभी इशराक तो नहीं पढ़ते, कभी ये 3 तस्वीर तो नहीं पढ़ते। हमारी इसका मकसद ये है कि अल्लाह करे 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 10 मर्तबा सुनने के बाद हमारी जिंदगी आमली बन जाए।
अय्युकुम अहसनु अमला। तो नियत करो इंशाअल्लाह कि हम मस्जिद की तालीम में भी बैठेंगे और घर की तालीम में भी शरीक रहेंगे। कौन कौन नियत करता है? माशाअल्लाह। भाई मजमा तो आपका बहुत अच्छा है। चलो एक साथी और आ जाओ। मशवरा का गया, मशवरा का गया, फिर तालीम का, अब शायद भाई ये चलत फिलत क्यों हो रही है? मैंने तो सुना कि मेहसाना का मजमा हमेशा जब भी बैठता है दिन की बातों को सुनने के लिए तो सुकून के साथ बैठता है। मैंने ये सही सुना? अरे बोलो नहीं यार। 10 मिनट बहुत तो फिर सही करके बताओ ना, ये बार बार उठते जाते हैं। अब तो कोई नहीं उठेगा। भाई वहां तक आ जाओ, मेहसाना वाले आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बाकी मजमा आपका, अरे बोलो नहीं यार। हाँ जरा मत खींच कर बोलो। आपके 2 गश्त की बतला दो, पहला गश्त दूसरा गश्त कब होता है, कितने आदमी होते हैं, क्या क्या अमल होता है? हमारी मस्जिद में पहला गश्त शनिचर के दिन होता है मगरिब की नमाज के बाद। कितने लोग आते हैं? हमारे गश्त में 20 से 22 साथी वो होते तो हैं। ना के आपकी मस्जिद में 4 महीने वाले कितने हैं? 4 महीने वाले 15 साथी, और चिल्ले वाले? ये वाले तो 30-32 तक। तो 45 में से ये 45 से 45 भी आते नहीं है, यानी हमारी मूड़ी में भी कमी है। अच्छा कितने मकान आते हैं? तो मकानात तो पूरे इलाके के गिनो तो 350 मकानात हैं। हमारी मस्जिद के करीब 150 मकान। बस आप अपनी मस्जिद का ही बोलो। 150 और 20-22 गश्त में आते हैं। क्या क्या अमल करते हैं? मतलब पहले गश्त के फजाइल बयान करते हैं। ऐलान नहीं करते? हाँ ऐलान, तो बोलो ना। पहले ऐलान होता है। कौन ऐलान करता है? सुबह मशवरे में तय होता है किसका वो ऐलान। कोई नया बच्चा चिल्ला लगा कर आए उसको भी देते हैं कि नहीं? जी देते हैं ना? जी। अच्छा तो माशाअल्लाह। चलो फिर ऐलान के बाद फिर फजाइल गश्त होता है। उसके बाद जमातें बनती हैं। जमातें गश्त में रवाना होती है। कितनी जमातें बनती है? जैसे साथी कभी 3 जमातें बन जाती है, कभी 2 बनती है। अच्छा फिर साथी ज्यादा होते हैं तो 3 बन जाती है। 10-10 साथी की जमातें बनाती बड़ा दिल रखो ना, 3 गिनो ना कि जी। 3 बनती है। जी। हाँ चलो फिर। जमातें गश्त में रवाना होती है। ओ भाई, ओ मेरे भाई, ऐसा मत करो ना यार। आपको हो तो अपने पूरा कर लेना। नहीं वाकई में अगर जाना है तो बात खत्म कर देना। चलो कितनी देर गश्त होता है? इशा की अजान तक। कितनी मुलाकात, कितने घरों की मुलाकात होती है? तो आमतौर से जो जमातें जाती है चलो 10 अपने गिन लो, 8 नहीं, अपने तो बड़े दिल से ज्यादा गिनो। तो 3 जमातें कितनी मुलाकात करेगी? 30। और है मकान कितने? अब फिर क्या करते हो? 30 हो गई, 120 बाकी रह गई, अब उसको क्या करोगे? 150 मकानात है, उसमें हर मकान में जमातें नहीं जा पाती। जैसे हमारे मिक्स माहौल है, सब मिक्स का माल, मर्द औरतें बच्चे जवान हो तो मिक्स होते ही है ना। हमारे मालदार गरीब वो भी मिक्स होते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ वो भी मिक्स होते हैं। हमारे मुहिब्बीन ज्यादा है हमारे इलाके में। तो उन्होंने तुमको ना कह दिया कि हमारे घर मत आना? जी हाँ, हम बार बार जाते हैं। वो लोग फिर बोलते हैं कि आपको जब कह दिया है तो क्यों बार बार आ रहे हैं। आखिरी तुमको कब कहा इन्होंने? वो याद नहीं है। यानी इतने साल हो गए कि याद भी नहीं है, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। तो कैसा? नहीं, साल के पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले? या जहनों में फंसा हुआ है कि ये मुहिब्बीन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो कैसी बात है, जैसी बात है वो बोलो ना, वो पक्का ऐसी नहीं, पक्की टक्की तो बात होनी चाहिए। चलो खैर, यानी 3 जमातें जाती है और 30 मुलाकातें होती है, उसके बाद बाकी छुट्टी 120 घरों की। नहीं सर, हमारे जैसे आज यहाँ से गश्त शुरू किया, जहाँ खत्म हुआ दूसरी मर्तबा वहां से शुरू। तो बोलो ने, दूसरे हफ्ते में दूसरे 30, तो कितने हुए? तीसरे हफ्ते में तीसरे तो कितने हुए? चौथे हफ्ते में, 5वें हफ्ते में 150 हो गए ना, 5 हफ्ते। तो मैं आपको पूछूं, ये हफ्तावारी गश्त है कि 5 हफ्तावारी गश्त है? नहीं, ये मेरे को जवाब दो आप। जब 5 हफ्ते में पूरा होता है तो ये हफ्तावारी गश्त है कि 5 हफ्तावारी गश्त है? और है क्या? तो हमने उसको बदल दिया। बोलो नफा होगा? पेट्रोल की जगह पर पानी डाल दिया, गाड़ी चलेगी। नमक की जगह पर सोडा डाल दिया, बोलो खाना अच्छा होगा? तो ऐसा हो गया। चलो दूसरा गश्त कैसा करते हैं? पूरे 22 साथी जितने बैठते हैं उनका नहीं होता दूसरा गश्त, चंद साथी ही करते हैं। वो कौन से इलाके में जाते हो? हमारे नई बस्तियाँ तय की हैं, यानी गैर मानुस, गेरवान जहाँ हमारे दावत नहीं है। जी। माशाल्लाह, यही होना चाहिए। अब सबका गश्त नहीं होता, उसकी कोई तरतीब नहीं बनाते। समझाते हैं, तरवीज देते हैं। चलो ठीक है, बैठ जाओ। देखो भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारा ये गश्त वाला अमल जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत के बिल्कुल करीब मुशाबियत वाला ये अमल है। हर नबी ने गश्त किया है, हर नबी ने क्या किया है? हम खुशकिस्मत है। जो दिन हमारा गश्त का दिन होगा, उस दिन तो हम बहुत ज्यादा खुश होने चाहिए। जैसे शादी के दिन आदमी कितना खुश होता है, ईद के दिन नौजवान कितने खुश होते हैं, उससे ज्यादा हमको खुशी होनी चाहिए कि आज नबियों की मेहनत वाला अमल करने का दिन है। बाजे अल्लाह वाले सुबह से तैयारी में लगते थे। बाजे लोगों ने सुनाया मेवात में रात से तैयारी में लगते थे, तौबा और इस्तिगफार करते थे, रोजा रखते थे, सदका देते थे। ऐ अल्लाह, तूने आज हमको ये मयस्सर किया नबियों वाली मेहनत का दिन, हमें भी ऐसी खुशी होनी चाहिए। और गश्त अगर मगरिब के बाद है, हमारी मेहनत सुबह से होनी चाहिए। पूरे महल्ले के तमाम बालिग मर्द हमारी गश्तों में शरीक हो। अगर ये नहीं आते तो 4 महीने चिल्ले वाले तो शरीक होने चाहिए, तमाम मुसल्ली तो शरीक होने चाहिए। ये जो 15-20 आदमी कई सालों से करते हैं और 2 जमातें या 3 जमातें बनती है, बोलो एक जमात अगर 10 घर करे तो 150 घरों में कितनी जमात होनी चाहिए? 15 जमात। अगर इन्होंने 10 तो बहुत कम गिना है, आमतौर पर 15 मकानात तो हो ही जाते हैं, 15 से 20, 50 मिनट का टाइम होता है, आप देख लेना। 20 घर तो तकरीबन हो जावे। अगर हम 20 घरों की भी एवरेज लेवे तो 150 मकानों में कितनी जमातें होनी चाहिए? 7-8 जमातें होनी चाहिए। आप कहोगे कि हमारे पास आदमी नहीं है, आपके महल्ले में तो इतने मकानात है, 150 घर है, एक घर में 2 एवरेज पकड़े तो कितने बालिग मर्द हैं? अब 300 घरों में से 300 बालिग मर्दों में से अगर आप 10-10 की 7 जमात बनाओ तो आपको कितने आदमी चाहिए? अरे बोलो। उसकी मेहनत सुबह से होनी चाहिए। मेरे घर में मैंने वलीमे के दिन 1000 आदमी को खाने की दावत दी। अब मेरे घर में मेरे बेटों में 4 बेटे हैं, मसलन 4 बेटे 1000 आदमी को खिला सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने खानदान के जवानों को कहूंगा, देखो तुमको भी खिलाने का है। अब खानदान के जवान भी 20 है, 20 आदमी 1000 आदमी को खिला सकते हैं। अब जरूरत ज्यादा है और है 20, तो मैं मस्जिद व जमात को दावत दूंगा। मस्जिद व जमात के 25 साथी और मिल गए,
40-50 साथी हो गए तो भी खिला नहीं सकते, तो फिर मैं और अपने दोस्त बिरादरों को और दूसरी मस्जिद के साथियों को लेऊंगा। मेरी ये नीयत है कि मेरे को 1000 आदमी खिलाना है और 100 आदमी की जरूरत है, तो मैं कुछ भी करके 100 आदमी को कहीं से भी लेकर आऊंगा। अरे बोलो होगा कि नहीं जी। अगर कोई नहीं मिला तो मैं मन्नत समाजत करके भी ले आऊंगा, लेकिन लाऊंगा तो सही। ऐसे हमारे यहाँ 70 आदमी की जरूरत है, पूरी मस्जिद वाला जमात 20-22 आदमी की। अगर सुबह से ये नियत करे कि हम 3-3 नए साथियों को लेकर आएंगे, तो बोलो 22-66 आदमी दूसरे हमको मिल जावे, हमारी जरूरत पूरी हो जावे कि नहीं। ये हमारा हफ्तावारी गश्त है, 5 हफ्तेवारी गश्त नहीं। हमारी कोशिश और मेहनत होनी चाहिए कि हफ्ते में 150 के 150 मकान तक हमारी जमात पहुंचनी चाहिए। तो नियत करो इंशाअल्लाह, आज से हम सब नियत करें कि जितने मकानात, जितने जमात की जरूरत है, उतने मकान तक तो हम पहुंचेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। और नए साथियों का ऐलान ना करें। भाई अगर हमारे यहाँ शादी होती है तो हम छोटे बच्चों को भेजते हैं दावत देने के लिए, तो ये तो दावत की मेहनत है। पुराना मुतवल्ली इमाम साहब ऐसे आदमी जब ऐलान करेंगे तो बोलो इनके ऐलान के असरात होंगे क्या नहीं। बाजे मर्तबा कोई बुजुर्ग आ जाते हैं तो ऐलान कौन करता है? अरे बोलो नहीं, क्यों? एक अजमत है। ऐसे दाई कोई भी हो उसकी भी एक अजमत होनी चाहिए। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा कि आजकल काम तो हो रहा है लेकिन तरक्की नहीं हो रही, तो हजरत जी ने कहा देखो 6 अमल है, 3 खुसूसी अमल है, 3 उमूमी अमल है। खुसूसी अमल तो क्या है? मशवरे में बैठना, बयान करना, ये तमाम खुसूसी अमल है। और उमूमी अमल के नया सा नया मेवाती भी क्यों ना हो, आदमी ध्यान लगाकर बात सुने, 2 गश्त करे, 3 दिन पाबंदी के साथ लगावे। अगर खुसूसी अमल के साथ ये उमूमी अमल होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाएंगे। ये हमारा गश्त वाला अमल, ये हमारी तरक्की का जरिया है। पहला गश्त भी और दूसरा गश्त दोनों मिलाकर एक अमल है। और जैसे भाई ने कहा ना, गैर मानूस इलाकों में, लेकिन ये 3 जगह बजाय उसके 20 आदमी कोई एक जगह जाकर पूरा गश्त करके 2-2.5 महीने में उस बस्ती को आमाल दावत पर उठा दे। फिर अगर नहीं होती तो दूसरी बस्ती पकड़ ले, यहाँ किसी और को लगा ले। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि भाई दूसरा गश्त कितनी दिन तक करना चाहिए? आपने कहा कि 2-2.5 महीने, 8-10 हफ्ते, फिर दूसरे को लावे, फिर तीसरी जमात, ऐसे करके वहाँ आमाल दावत जिंदा हो जाने चाहिए। तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब दूसरा गश्त करेंगे। करोगे? कौन कौन नियत करता है करेंगे? पहला गश्त तो आसान है लेकिन दूसरा गश्त थोड़ा मुश्किल है। हमने उसको मुश्किल बना दिया, जैसे वो हमारी जमात ने गर्मी को क्या बना दिया, ऐसे हम भी। अरे कोई मुश्किल, कल कारगुजारी आई थी 30 किलोमीटर, ये जोन की जमात में, तो 30 किलोमीटर बोले हम नहीं जाते, बहुत दूर है। तो मौलवी फरीद ने कहा ना कि हमने उसको दूर बना दिया है। ये 30 किलोमीटर तो साइकिल के जमाने में दूर कह सकते, लेकिन आज बाइक के जमाने में 30 किलोमीटर दूर है। हम लोग एक मर्तबा जर्मनी में गए, एक आदमी आकर कहने लगा अमीर साहब 2 साथी दे दो, दूसरा गश्त करना। तो अमीर साहब ने हम 2 को भेज दिया, बहुत साल पहले की बात है। तो अपना दूसरा गश्त कितना होता है, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। मेरे भी जहन में वही था। वो तो बिठाया 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70, 75, 80 किलोमीटर में जाकर गाड़ी रोकी। अरे मैंने कहा भाई दूसरा गश्त करना, बोली ये दूसरा गश्त हमारा है। तो इनका दूसरा गश्त कितने किलोमीटर पर होता है? बोले हमारे यहाँ बस्ती जहाँ आमाल दावत नहीं, मुसलमान है, मस्जिद मदरसा नहीं, हमारा दूसरा गश्त मशवरे से यहाँ तय हुआ। तो लोग अपने
گاڑیوں کو اور اپنی جان مال کی صلاحیت کو اتنے دور تک لے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دعوت وہاں پر زندہ ہو جائے. ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دونوں گشت پابندی کے ساتھ کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک ساتھی اور آ جاؤ بھائی وڈانی کے آ جاؤ. عملت لحلمي عملت كثيرا وها